Let us try to come for the next topic, beta. Am I audible to everyone, beta? Yes, sir. चलो चलो let us try to go for the next topic, beta. Resolution of a vector. Resolution of a vector. Resolution of a vector is nothing but, beta, splitting of a vector. The process of splitting of a vector into its x component, y component and z component is known as of your resolution of a vector. तो मैं लिख दे रहा हूँ basically the method of splitting up a single vector into two vectors is called the resolution of vector. Is called what? The resolution of your vectors. Is it clear for everyone? What do you mean by resolution of a vector, beta? Resolution of a vector is nothing but, right now for me, splitting of a vector into its component is called as of your resolution of your vector. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. ठीक है ना? चलो ये मान के चलो मेरे पास x एक्सिस है और ये मान के चलो मेरे पास y एक्सिस है. ओके और अंदर एक वेक्टर है मेरे मान के चलो दिस इज ए वेक्टर p bar and this one is say for example r bar and is making an angle of your theta. This is nothing but वो. ठीक है. Now splitting of this vector into its component यानी x axis और y axis में अगर हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं then that is called as of your resolution of a vector. यानी किसको वेक्टर किसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं बेटा? ग्रीन वेक्टर ग्रीन इज नथिंग बट वो टू बी जो है ना वेक्टर है दैट इज r bar that we need to resolve it along your x axis and as well as of your y axis part. देखो चलो अगर मैं इसको ऐसा ले लूं ये हो गया मेरे पास x axis और this one is like say for example your y axis and the resultant of this vector is right now this one was of your p bar, this is nothing but o, this one is r bar and making an angle of your theta. Okay, now if I'm writing this vector into an x axis right now, if I'm resolving this vector like this, taking one vector right now here and vector यानी यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर हो गया then again resolving this here into one vector. ये मान के चलो this one is nothing but em and this one is nothing but of your en. ठीक है. Now from the parallelogram law of vector addition I can write from parallelogram law we can write, बता कौन बोल सकता है इसमें? वो p bar will be equal to how much बेटा? वो m bar प्लस वो n bar लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. Can we write like this? वो p bar is equals to वो m plus of your वो n. लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Isn't it? That means OM is one vector and ON is another vector. यानी वो भी वेक्टर को हम लोग x axis में लिख सकते हैं OM से और ON is nothing but of your y axis component से. ठीक है ना? Yes, sir. नहीं समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है चलो मैं इसको और थोड़ा डिटेल में कर लेता हूँ. मान के चलो केस नंबर 1 ले लेता हूँ मैं इसमें. अगर मान के चलो मेरी एंगल है when
when 0 is lesser than theta and theta is मान के चलो lesser than pi by 2. तो अब इसका जो वेक्टर होगा बेसिकली मान के चलो ये हो गया मेरे पास x एक्सिस और ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये जो वेक्टर था यहाँ से यहाँ तक ये था मेरे पास वेक्टर दैट इज नथिंग बट ऑफ योर p बार, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर वो. अगर हम लोग इसको रिजॉल्व कर रहे हैं राइट नाउ, सो हियर वी आर रिजॉल्विंग इट इनटू x एक्सिस एंड एज वेल एज ऑफ योर y एक्सिस. ये हो गया मेरे पास m और ये हो गया मेरे पास n. So let me tell you right now from this one, if it is making an angle right now here theta, OP bar will be equal to how much beta? OP bar will be equal to how much? वो m bar plus वो n bar. लिख सकता हूँ? वो to b is nothing but what for me? R bar. तो ये हो गया मेरे पास R bar is equals to वो m, this one is in which direction beta? I cap. प्लस वो n का मैग्नीट्यूड along which direction? J cap. Can I write like that? Yes, sir. Sure. What I can do is right now divide and multiply by your OP on either side. मान के चलो mod of your OP into mod of your OM into your I cap divided by mod of your OP. कुछ चेंज होगा क्या इसमें? फिर यही आएगा ना OP OP कट होके. इसको भी इसी तरह से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ योर ओपी एंड दिस वन इज नथिंग बट मॉड ऑफ योर ओएन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ योर ओपी एंड दिस वन इज अलोंग योर जे कैप. ठीक है. नाउ वो टू पी इज नथिंग बट व्हाट बेटा? ये हो गया आर बार. वो टू पी इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी? आर इनटू वो एम बाय ओपी. क्या लिख सकता हूं मैं? ओ एम बाय ओपी इज नथिंग बट व्हाट? कॉस थीटा. सो दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर कॉस थीटा आई कैप प्लस OP is nothing but of your R, then ON by your OP, ON vertical divided by OP, that represents me what? Sin theta. So this one is nothing but of your sin theta J cap. Clear है? Yes, So sir. this is the resolving along your, अगर 0 से लेके 90 डिग्रीज के अंदर रेंज होगा और थीटा इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा और cos थीटा आई कैप और वाई कंपोनेंट में जो आएगा और sin थीटा इनटू योर जे कैप. ठीक है ना? ठीक है. तो और cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. or cos theta and r sin theta are what? Rectangular components. Therefore, I can write r bar is equals to, this will become for me rx I cap plus ry j cap. Okay, so this is the way how do we write the value of your r bar. If it is in which coordinate beta? 0 lesser than theta, theta lesser than of your pi by 2. Okay? Yes, sir. Chalo. The same way, case number 2 if I am going right now. Case number 2. That means when जो अपनी एंगल है pi by 2 is lesser than theta and theta is lesser than of your pi. मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? pi by 2 lesser than theta and theta is lesser than pi. Second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी ये जो कंपोनेंट आएगा इस तरह से आ जाएगा. ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया मेरे पास x डैश. And I'm taking a vector in this one. There is nothing but wo. I'm taking a vector right now like this. So this is nothing but of your p bar. And this vector is nothing but of your r bar, and it is making an angle of your theta with your x axis. Matlab this one is your theta. And here this one is making an angle here right now, say for example phi. ठीक है ना? Now tell me, वो p bar will be equal to how much beta? अगर इसको हम लोग completely triangle बना रहे हैं, so this is nothing but of your m and this one is nothing but of your n. This is a vector wo. Now tell me, this is a vector p. So now I can write wo p bar is equals to how much beta? Wo p bar is equals to wo m bar plus wo n bar. Can I write like this? Okay. Wo p bar is equal to how much beta? Wo m2 is one vector and wo n is in another vector. Clear? Yes, sir. Okay. Now OP bar is nothing but what? R bar. R bar is equals to, again divide and multiply by the vector OP.
OP इंटू ये हो गया OM डिवाइडेड बाय योर OP इंटू इसका जो डायरेक्शन आएगा, बताओ OM का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव आई कैप लिख सकता हूँ, प्लस उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ योर OP इंटू ON का मॉड डिवाइडेड बाय योर OP का मॉड इन विच डायरेक्शन, J कैप. तो दिस वन इज इन योर J कैप. Now see here, R bar is equals to what I can write, can you tell me? See here, R bar is equals to OP is nothing but R, OM by OP is nothing but how much beta, cos phi. This one is your cos phi minus I cap plus this one is nothing but R, ON by OP, see the figure, ON by OP is nothing but how much for me, your sin phi in which direction beta, J direction. Okay now, so that is equals to, now see here, phi value will be equal to how much beta from the figure, you see, phi value will be equal to pi minus 180 minus theta. 180 minus theta, phi value, can I write like that? So this will become for me how much for me, R common into, this will become for me cos pi minus of your theta into minus I plus R मैंने common ले लिया पूरा, and this one is nothing but of your sine will be equal to how much for me, sine of your, this will become for me pi minus of your theta into this one is nothing but J cap. So that is equals to your R. Cos 180 minus theta is how much beta? Cos 180 minus theta कितना है? Minus cos. Minus cos theta, minus of minus, it will become for me plus, यानी this will become for me cos theta I cap. Yes, sir. बराबर है? Yes, sir. देखो फिर से एक बार, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम क्लियर है? देखो एक बार फिर से, ओके Yes, sir. चलो, प्लस ये भी हो जाएगा R इंटू साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अलॉन्ग J कैप. तो ये हो गया इसका R पार्ट. ठीक है? Yes. So in the same way we can calculate for the third quadrant, fourth quadrant वगैरह भी जो भी है हम लोग उसके हिसाब से निकालते जा सकते हैं basically. Is it clear for everyone? Yes, sir. चलो. And next one is your right now. Unit vector is done na beta? Yes, sir. Unit vector is done. Okay, chalo. Next heading you write right now. This is very important area of this complete chapter. Product of two vectors. Product of two vectors. Product of your two vectors. Vectors में अपने पास two products है बेटा. One is known as of your scalar product, another one is known as of your vector product. One is known as of what? Scalar product, और इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है? The another one is nothing but of your vector product. Vector, yeah, it is also called as of your cross product. Also called as of what? Cross product. Clear है सभी को? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अपने पास कितने टाइप है, दो टाइप है. वन इज नोन एज राइट नाउ फॉर मी स्केलर प्रोडक्ट, अनदर वन इज नोन एज ऑफ योर वेक्टर प्रोडक्ट. क्लियर है? क्लियर है? देखो अब इसको ध्यान से सुनो. यहां पर स्केलर मतलब क्या, स्केलर मतलब क्या बेटा, Without direction. विदाउट एनी डायरेक्शन, यानी इसको सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ही रहेगा ना. Yes, sir. It has only magnitude but no specified direction. Yes, sir. पता ही ना?
यस सर। चलो ये देखो बेटा, इसमें अच्छी तरह से सुनो एक बार। अगर मैं यहां पर मैं बोल रहा हूं, अगर एक वेक्टर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, अगर अपने को एक स्केलर आ रहा, देन दैट इज नोन एज ऑफ योर स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? Yes, sir. क्या हो रहा? अगर एक वेक्टर और एक वेक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, अगर रिजल्ट आपको सिर्फ एक नंबर आ रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट Dot बोलेंगे। product. अगर हम लोग एक वेक्टर, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर एंड विथ योर अनदर वेक्टर, एंड इफ द रिजल्ट इज अगेन ए वेक्टर, that is known as of what? Vector product. That is known as of vector product, or also known as of what? Cross product. Clear है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Isn't it? अगर दो वेक्टर, दोनों जगह भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो अगर एक दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको एक नंबर आ रहा खाली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको एक वेक्टर आ रहा है, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो, let us try to first talk about the first type of a vector, that is nothing but of your scalar or also known as what? Dot product. ठीक है? So let us try to talk about your scalar or also known as of your dot product part of relation. So what is this relation that I told you? What is this relation? When two vectors are being multiplied, if we get a scalar, that is known as of what? A scalar product or also known as dot product. See here, the scalar or dot product, the scalar or dot product of any two vectors, like a bar and b bar, denoted as C, a bar dot b bar. Okay, now how do you read it? This one, see beta, it is read as a bar dot b bar. ठीक है? It is read as what? A bar dot b bar is defined as देखो ये वाला, a bar dot b bar is equals to mod a mod b into cos theta. That is nothing but what for me? A b into your cos theta. Isn't it? Theta is nothing but what? Smaller angle between a bar and b bar. Theta is smaller angle between a bar and b bar. ठीक है? So ये हो गया इसका component right now. So a bar dot b bar क्या हो गया बेटा? Mod a mod b into cos theta. Yeah, that can directly written as of your ab into cos theta. Theta is what? Smaller angle between a bar and b bar. Example देखिए चलो, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दिया रहा, ये बार है और ये अनदर वेक्टर है b बार है, मान के चलो इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री से, और इन दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी बेटा? 300। तो एंगल कौन सा लोगे? थीटा क्या लोगे? 60 degrees. 60 डिग्रीज, यानी दो भी टेल एंड टेल मेथड से ही है। आपको 300 भी आंसर हो सकता है, 60 भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग कौन सा एंगल लेंगे? कभी भी स्मॉलर एंगल लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Here whatever the a values I am taking here beta, here a comma b and cos theta are what for me? Scalars. Nothing but what for me? Scalar. That means dot product of a bar and b bar is scalar quantity. That is the why dot product of two vectors when multiply, this one is also called as a what? Scalar product. यानी ये क्या हो सकता है? cos theta की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बता सकता हूँ? 0 हो सकता है क्या cos theta कभी? cos 90? Cos 9. Yes, sir. Cos cos 0 कितना होगा? 1 cos 180 minus 1. minus 1 cos 180
Minus. Minus. Minus Can I say right now the dot product, like say for example, the scalar or dot product, the scalar or dot product may be what? Positive, comma, it may be negative, or it may be zero, isn't it? Accordingly, because as theta is what in the bracket, as theta is acute, theta is अगर पॉजिटिव हो गई तो acute, कामा अगर नेगेटिव हो रही तो क्या हो जाएगा? obtuse. अगर 90 हो रही तो क्या हो जाएगा? 90 होगा तो क्या होगा बेटा? राइट एंगल. Angles beta. Lesser than 90 degrees is known as what? Acute. Greater than 90 degrees is known as obtuse. अगर cos 90 0 हो रहा मतलब theta कितना होगा? 90 degrees. That means it will be what? Right angle. बात समझ में आई? Yes, sir. अगर पॉजिटिव है मतलब क्या? That is known as acute. नेगेटिव मतलब that is known as obtuse. जीरो मतलब it is your right angle. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें फर्स्ट केस ले लेते हैं बेसिकली. सी फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस. when 0 degrees is lesser than or equal to theta is lesser than 90 degrees. यानी something like this. This is your vector a bar and this is your vector b bar and this is known as of your theta. 0 degrees lesser than or equal to theta. Theta is lesser than 90 degrees. That means it is in which quadrant? First quadrant. यानी a bar dot b bar will be equal to mod a mod b into cos theta. This will always be a positive. ठीक है? चलो सेकेंड वन में लिख रहा हूं बेसिकली. when theta is 90 degrees, that is a bar is perpendicular to b bar. तो कैसा होगा वेक्टर? देखो ये हो गया मेरे पास a बार और अनदर वेक्टर हो गया इस तरह से b बार और इन दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्रीज. सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज तो a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू mod a mod b into cos 90. cos 90 is how much? 0. ठीक है? थर्ड कंडीशन. when 90 degrees is less than theta is greater than or equal to your 180 degrees. मतलब वेक्टर कैसा बनेगा? ये हो गया वेक्टर a बार और ये हो गया वेक्टर इस तरह से. that is nothing but of your b bar. दोनों के बीच में जो एंगल आ रही है that is nothing but theta. so theta is greater than 90 degrees but equal to how much for me? 180 degrees. सॉरी लेस देन होना है थीटा 180 कोऑर्डिनेट. सॉरी तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि ग्रेटर हो गया तो थर्ड कोऑर्डिनेट में चले जाएगा ना, है ना? थीटा इज लाइंग बिटवीन 90 एंड 180. बात समझ में आई? Yes, sir. थीटा इज इन बिटवीन 90 एंड 180. तो जब क्या हो जाएगा? a बार डॉट b बार विल बी इक्वल टू mod a mod b into cos theta. So here what will be? That will become for me negative. That will become for me what? Negative. ऐसा हो सकता है. यानी we got all the three cases. So it can be either positive, it can be either negative, or it can be either zero depending upon the given situation. Clear everyone? So what is the dot product beta? Dot product देख लो एक बार जल्दी से. Dot product is nothing but what for me? Dot product is also called as scalar product. If you are multiplying any two vector, like say a bar a vector है, b bar is a vector, and again if I am getting a scalar product, this is totally what right now for me is scalar product, a pure number. Then such type of vectors are called as of what? Scalar product, or also called as dot product. Clear है सभी को? Yes, sir. So I hope your definition is clear for everyone. And theta is the smaller angle between a bar and b bar, and theta can be either positive, negative, or zero. That means the angle can be either acute, obtuse, or either right angle to the given situation. ठीक है ना? चलो, let us try to go for the next one.
that is scalar product. This is very important, beta, try to listen it carefully. Scalar product between I cap comma j cap and k cap. What are I, k and j, beta? X, Y, Z. Yeah, Yes. that means they are also called as what type of vectors? Orthogonal vectors. Yes, sir. Why? Because angle between them is how much? 90. 90 degrees. मान के चलो ये हो गया I cap and this one is your j cap and this one is nothing but of your k cap, and angle between all of them is how much for me over? This is your x axis, this is your y axis, and this is your z axis, isn't it? 90. So vectors along here, the angle between all of them is 90. This one is 90, this one is also 90, and angle between them is also your 90 degrees part of relation, isn't it? So if I'm writing the dot product of any two parallel vectors, beta, so if I'm taking the dot product of parallel unit vectors मतलब क्या? I cap and I cap. Yes. अगर दो I cap मैं लेता हूं, that means they are parallel vectors. So I'm writing here right now, taking dot product of parallel unit vectors. मतलब I cap dot I cap is equals to mod I into cos, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0. That will be equal to how much for me? 1. होता है ना बेटा? J cap Yes. dot J cap is equals to mod 1. J. This one is mod J into cos 0. That is also equal to 1. K cap dot K cap is equals to mod K into cos of 0. That is also equal to how much? 1. That means I can write now here I cap dot I cap is equals to J cap dot J cap is equals to K cap dot K cap. That is all equal to how much for me? 1. 1. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपल्सरीली काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स लॉस में यूज होते रहता. अगर टू सिमिलर वेक्टर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी कितनी हो जाएगी? 1. ठीक है? सर I into J 0 था सर. क्या बेटा? I into J. I into J 0 नहीं होगा. I into J कितना होगा? हाँ, I into J 0 होगा. आंसर 0 होगा. एंगल क्या होगी? Yes sir. 90 degrees. 90 डिग्री. तो देखो चलो, अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ बेसिकली, चलो मान के चलो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ perpendicular unit vectors. What are the perpendicular unit vectors here, beta? I, J, K. I cap, comma, I J J K. yeah. So I cap, J cap is equal to कैसे लिख सकता हूँ मैं? Mod I. This one is mod J into your cos 90. तो cos 90 कितना? 0. 0. ठीक है ना? उसी तरह से J cap dot your K cap अगर लिखूं मैं, तो this will become for me mod of J mod of your K into cos, फिर से कितना हो जाएगा? 90. cos 90 is again 0. ठीक है ना? Then K cap dot your I cap, that will be equal to how much beta? Mod of your K mod of your I into cos 90. cos 90 is again 0, isn't it? So I can say right now here I cap dot J cap is equals to J cap dot K cap is equals to K cap dot your I cap is equals to J cap dot I cap is equals to K cap dot J cap is equals to I cap dot your K cap. ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर ही होगा. आप I और J लो या J और I लो, तो एंगल तो 90 डिग्री ही रहती ना. Yes sir. बात में 0. समझ में आई? ये देखो मैंने ये जो लिखा बेसिकली I और J और I तो एक ही है ना? Yes same. है ना? एंगल बिटवीन देम J and K and J मतलब भी सेम ना? ठीक है ना? K and I and J, I and K is also same ना? Same. Because angle between them is how much for me? 90 degrees. So this is always equals how much for me?
जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट में कौन सा 1 और कौन सा 0 होगा बताओ, देखो एक बार। क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन i j एंड k में अगर हम लोग पैरेलल यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, फॉर द पैरेलल यूनिट वेक्टर्स i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के बारे में, देन i कैप डॉट j कैप डॉट k कैप और k कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू how much for me? 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Let us try to go for the next one. Properties of scalar product. Properties of scalar product. Properties of your scalar product. Okay. So what do you mean by this? Properties of your scalar product. देखो फर्स्ट वन लिख रहा हूं मैं बेसिकली, एक मिनट। चलो फर्स्ट वन देखो, the dot product, the dot product of a vector, the dot product of a vector with itself gives the square of its magnitude, that is a bar dot a bar will be equal to mod a into cos 0। तो ये बना कितना मेरे पास a स्क्वायर, बताइए ना बेटा। Yes, sir. bar dot a bar is equal to how much for me? a स्क्वायर, यानी दो सिमिलर वेक्टर्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? a स्क्वायर। अगर 1 into 1 होता तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती? 1 ही होती ना अपने पास। One year. तो काइनेटिक एग्जांपल लिख लो। काइनेटिक एनर्जी आप लोग लिखने लिखा होगा स्कूल डेज में। हाउ टू राइट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू Half m mv स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाफ इनटू m इनटू, क्या मैं इसको v बार डॉट v बार लिखूं? कोई प्रॉब्लम? नहीं sir. बराबर है ना? ठीक है। सो a बार डॉट a बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? a स्क्वायर। आई होप दिस A square. इज क्लियर फॉर एवरीवन। चलो सेकेंड वन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स obeys commutative law, obeys your commutative law, that is a bar dot b bar will be equal to b bar dot a bar। मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोग ने, मैथ्स में पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir. What is sir? Yes, sir. अब ये बार डॉट बी बार क्या था अपने पास, बताओ जल्दी से। ये मॉड बी इंटू कॉस थीटा था, दैट इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार बता क्या लिखोगे? मॉड बी मॉड ए इंटू कॉस थीटा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कॉस थीटा है, कॉस थीटा चले गया, तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास? सो देयरफॉर दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी? ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू योर बी बार डॉट ए बार। यही तो बोलना चाह रहा हो। तो आप 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, द रिजल्ट विल बी वन एंड द सेम। ठीक है। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट obeys what law? Commutative law। थर्ड पॉइंट लिख लो बेसिकली, द डॉट प्रोडक्ट obeys distributive law, obeys distributive law। मतलब क्या? a बार डॉट b बार प्लस c बार
विल बी इक्वल टू, ए से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, ठीक है ना। So it is obeying which law beta? Distributive law. It is also obeying your distributive law. It is obeying commutative law. It is also obeying your distributive law. मतलब a bar dot b bar plus c bar is equals to a bar dot b bar plus a bar dot c bar. Clear है? चलो fourth one. If the dot product of two vectors, if the dot product of two vectors, the dot product of two vectors is numerically equal beta, numerically equal to the product of their magnitudes, product of their magnitudes, then the two vectors are collinear vectors. What vectors? Collinear vectors. मतलब when theta is 0 degrees बेटा, a bar dot b bar क्या हो जाएगा? a bar dot b bar is equals to ab into cos 0 degrees, that is equals to ab. Also for theta is equals to 180 degrees, a bar dot b bar is equals to ab into cos 180 degrees, that is equals to minus of your ab. तो क्या collinear vectors हुए कि नहीं हुए? Isn't it? Hence for theta parallel हो जाएगा और 180 के लिए क्या हो जाएगा? theta is equals to मान के चलो मैं बोल रहा हूँ 0 degrees, मतलब क्या है? parallel vectors के बारे में बात कर रहे हैं ना? So talking about this one as parallel vectors. Isn't it? In the same way, theta 180 degrees मतलब क्या? Anti-parallel vector. ठीक है ना? So these are the some 4 properties you need to remember for the scalar product. What are the properties of scalar product? The dot product of a vector with itself always gives me what? Square of its magnitude gives me what? Square of its magnitude. So a bar dot b bar is equals to a square. Dot product of two vectors obeys your commutative law. Dot product of obeys your distributive law. If the dot product of two vectors is numerically equal to the product of their magnitudes, then the two vectors are called as what? Collinear vectors. Clear है? Yes, sir. Next heading of this one, उसका ही continuation ले रहा है basically. Scalar product in terms of components. In terms of components. In terms of components. Components मतलब क्या बेटा? कोई बता सकता है? Components मतलब क्या? X axis, Y axis and Z axis are known as components. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. मान के चलो अपने पास टू वेक्टर्स है A बार, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? AX I कैप हो सकता है, AY कैप एंड ZK कैप. इसी तरह से if I'm taking the B vector, B bar is equals to BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. Isn't it? Now इसका A bar cross B, A bar dot B bar बताओ क्या हो जाएगा? A bar dot B bar is equals to A की वैल्यू होगा यहाँ पर AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap डॉट ये हो गया BX I cap प्लस BY J cap प्लस BZ K cap. लिख सकता हूँ ऐसा? तो अब इसको मल्टीप्लाई करो. किस किस को मल्टीप्लाई करोगे? AX इंटू BX मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेटा मैं? Yes, sir. AX इंटू BX यानी I cap डॉट I cap होगा यहाँ पर. ठीक है ना? प्लस उसी तरह से AX इंटू यूवर BY कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. AX इंटू BY यानी I कैप डॉट क्या हो जाएगा? J कैप.
प्लस उसके बाद ax इंटू bz से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बना आई कैप डॉट यूर के कैप बना सभी को ठीक है Yes, sir. प्लस उसके बाद ए वाई हुआ ये हो गया कितना ए वाई इंटू बी एक्स ए वाई क्या है जे कैप बी एक्स कितना है आई कैप प्लस उसके बाद ए वाई इंटू बी वाई यानी ये हो गया जे कैप डॉट जे कैप प्लस ये हो गया ए वाई इंटू बी जेड ए वाई मतलब क्या जे कैप बी जेड मतलब क्या के कैप लिख सकता हूं ऐसा प्लस बचा क्या फिर नेक्स्ट ये जेड से मल्टीप्लाई करो ये जेड इंटू योर बी एक्स से मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के कैप डॉट आई कैप आ गया प्लस ये जेड इंटू बी वाई से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया के कैप डॉट योर जे कैप आ गया प्लस ये जेड और बी जेड से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया के कैप डॉट के कैप आया अब बताओ इसमें क्या क्या कैंसिल होंगे और क्या क्या रह जाएंगे जल्दी जो आई जे के रह जाता है हाँ आई डॉट कितना होगा 1 आई डॉट और जे डॉट कितना होगा 0 आई डॉट इंटू जे डॉट इज 0 तो Zero. 0 मान के चलो आई डॉट और के डॉट क्या होगा 0 ये भी 0 हो गया जे डॉट आई डॉट क्या होगा 0 ये भी 0 0 जे डॉट इंटू जे डॉट क्या होगा 1 जे डॉट इंटू के डॉट क्या होगा 0 0 तो ये हो गया 0 के डॉट इंटू आई डॉट क्या होगा 0 0 जे के डॉट इंटू जे डॉट क्या होगा 0 0 तो के डॉट इंटू के डॉट कितना 1 1 तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ अल्टीमेटली ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू योर बी जेड तो अगर कंपोनेंट में लिख रहा हूं तो डायरेक्टली ए बार डॉट बी बार तो इस शॉर्टकट को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ठीक है yes sir कंपोनेंट में दिया वेक्टर जैसा तो पूरा करने की कहानी जरूरत नहीं है डायरेक्टली रिलेशन याद रख लो डायरेक्टली अपने को आंसर निकल जाता है क्लियरली बात समझ में आई यस नहीं आई क्या आई next slide ready applications of dot product applications of your dot product देखो अगर हम लोग को एंगल निकालना है कोई भी वेक्टर के बीच में इट इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट टू फाइंड द एंगल बिटवीन to find the angle between the vectors okay how do you find the angle between the vectors देखियो अगर a बार डॉट b बार है तो मेरे पास क्या था बेसिकली देखो चलो a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b इनटू cos थीटा तो क्या मैं cos थीटा निकाल सकता हूं इसमें से cos थीटा इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं A bar will become for me a bar dot b bar divided by mod a mod b not B. ठीक है ना Theta is equal to cos inverse. हाँ तो अगर वो निकाल सकते हो बेसिकली ये हो गया मेरे पास एंगल निकालने का एक तरीका cos थीटा इज इक्वल्स टू a bar dot b bar divided by mod a mod b into your mod a into your mod b ठीक है ना चलो ये बताओ बेटा अगर मेरे पास a बार इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है इसका मॉड क्या होगा मॉड ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ठीक है ना उसी तरह से मेरे पास बी बार है बी बार इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ योर बी इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा यस सर तो ये हुए मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका
ठीक है ना। सो मॉड ए और मॉड बी निकालने का तरीका क्लियर है। क्लियर है। Yes, sir. इसके थोड़े एग्जांपल्स बता दो बेटा डॉट प्रोडक्ट के जल्दी से। एग्जांपल्स देखो, इसका पावर एग्जांपल है, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी लिखेंगे हम लोग दोनों भी वेक्टर से। तो जब एफ वेक्टर और वी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आता है, लाइक 10 वॉट बोलते हैं हम लोग, 20 वॉट है कि नहीं। Yes. तो क्या डायरेक्शन है क्या पावर के लिए? No. No. पावर इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। Yes. स्केलर क्वांटिटी। आप लोग 10th क्लास में फ्लक्स भी पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए वेक्टर पढ़ा था, बी बार डॉट ए बार। तो ये भी क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट। ओके चलो, और क्या एग्जांपल्स है? करंट, करंट इज इक्वल्स टू J bar dot your ds bar. J bar is known as current density बेटा, खाली याद रख लो, आपको सेकेंड ईयर में आता है ये। current density is represented by J. ds is nothing but of your area. ds is nothing but small area, small area. ds is nothing but what? Small area, differentiation. ठीक है। Yes, sir. work is also ये work done is equals to f bar dot d bar. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा। Scalar. तो डी बार क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ बार इनटू दिस वन इज r2 बार माइनस r1 बार भी लिख सकता हूँ। Yes. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करवाया था मैंने, आप लोग याद है कि नहीं है कि? याद है sir. देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहीं पर कहीं पर होगा, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। कैसे लिख रहे हैं देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, r2 बार माइनस r1 बार लिख सकता हूं मैं। Yes, sir. तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस रिप्रेजेंटेड बाय राइट नाउ d बार। सो वो हो गया मेरे पास कितना, f w इज इक्वल्स टू f बार डॉट b बार, दैट इज इक्वल्स टू f बार इनटू r2 बार माइनस ऑफ योर r1 बार। क्लियर है? Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन कर लो, विल गेट रफ आइडिया हाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन दिस। देखो, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a bar and b bar, where a bar is equals to I cap plus 2 j cap minus k cap, and b bar is equals to minus I cap plus j cap minus 2 k cap। चलो जल्दी से करो इसको। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a bar and b bar। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकालो। ए बार दे रखा है मेरे पास कितना, ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप। इसका मॉड क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ योर ए इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है कितना, जल्दी बताओ। अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरे पास माइनस का 1 स्क्वायर। सर यूनिट वेक्टर मॉड लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर सब काम नहीं कर रहा यार। हाँ कोई कुछ बोल रहे थे? सर मॉड लेते हैं यूनिट वेक्टर्स का होते कुछ। हाँ तो आई वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना। I into I is equals to 1, j is also equal to 1, k is also equal to 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर।
यस सर। तो ये कितना बना बताओ जल्दी से, √6, ठीक है ना। उसी तरह से बी बार देखो, बी बार इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो मॉड ऑफ बी कितना बना, देखो मॉड ऑफ योर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये बना कितना -1 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 का स्क्वायर। तो ये बना कितना मेरे पास √6। तो अब ए बार डॉट बी बार निकालो जल्दी से, कितना आ रहा देखो, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू कितना आ रहा 3. वेरी गुड, आई कैप प्लस 2j कैप, अब 60 degrees, sir. ये देखो, हाँ वेरी गुड 60 डिग्रीज। ये हो गया आई कैप प्लस ये हो गया 2j कैप माइनस ये हो गया मेरे पास k कैप, और इसका था ये डॉट, और ये हो गया माइनस ऑफ योर आई कैप प्लस ऑफ योर j कैप, और ये हो गया माइनस ऑफ योर 2k कैप। आई डॉट इंटू आई डॉट कितना होगा बेटा 1, तो +1 इंटू -1 है, समझ और मी -1 प्लस ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2, तो कितना हो गया 3, isn't it? तो अब एंगल निकालना है, तो cos थीटा हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, a बार डॉट b बार निकालना था और डिवाइडेड बाय मॉड a और मॉड b लिखना था। a बार डॉट b बार कितना था मेरे पास 3, मॉड a की वैल्यू √6, दिस इज आल्सो √6, यानी दिस इज 3/6, दैट इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी 1/2, यानी थीटा वैल्यू कितनी बनी, cos थीटा इज 1/2 मींस थीटा वैल्यू हाउ मच फॉर मी 60 डिग्रीज। बात समझ में आई? Yes, sir. I hope you have got an idea right now how to do the problems related to the dot product. यस सर। Yes, sir. और एक क्वेश्चन कर लो, अभी कुछ क्लास है क्या आप लोग को? केमिस्ट्री है सर। ठीक है चलो, ये आप लोग जरा आज रिवाइज कर लेना, ये वीडियो मैं वैसे भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लो रिवीजन के लिए, and the remaining we'll try to do in the tomorrow। एक geometrical interpretation है dot product का। हाँ बोलो बेटा। सर दिस वाज फॉर न्यू स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूट कर एक मतलब बोलिए सर। क्या बोले? मॉड लिया है सर, रूट कैसा है एक मतलब एक्सप्लेन कीजिए। कहाँ चले गए? हाँ क्या बोले बेटा? सर मॉड निकाल दीजिए, अब रूट कैसा है समझ में नहीं आया, आप क्या कर रहे हैं? वो बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा। ये देखो कभी भी हम लोग मॉड जब लिख रहे हैं बेसिकली, तो देखो मॉड जब लिख रहे हैं बेसिकली, मैंने आप लोगों को मॉड का वैल्यू बताया ना, मॉड कभी भी पॉजिटिव रहता, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था बेसिकली। अगर टू डायरेक्शन में मान के चलो, ए बार इज इक्वल्स टू ax है और ये y है, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसा, मतलब मैग्नीट्यूड a इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ योर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, अगर b बार इज इक्वल टू मेरे पास ऐसा है, मान के चलो bx प्लस by प्लस bz, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू, इसको रूट में डाल दो, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू वेक्टर्स कैसे लिख रहे थे हम लोग, याद है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब इनटू cos थीटा। अगर x एंड ay मतलब कितना, थीटा 90 डिग्रीज, ऐसा है कि नहीं, ये हो गया ax और ये हो गया ay, एंगल बिटवीन ax एंड ay इज हाउ मच 90। तो अब r की जगह क्या डालोगे, r इज इक्वल टू p की जगह क्या डालोगे, ax स्क्वायर, इसका ये होगा ay स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax ay इनटू cos 90 डालोगे, cos 90 कितना होगा, 0 से पूरा 0 चले गया ना, तो बना कितना है, अंडर रूट ऑफ योर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हो गया। आया समझ में? यस सर। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वो है बेसिकली। ये पूरा हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गेट इट आउट फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से निकाल रहे हैं। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में जब ले रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3 डायमेंशन में जब ले रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ओके सर।
So we'll meet again with some small topic left out in the dot product, that is geometrical interpretation, or tomorrow we'll try to do some more good problems on your dot product, then we'll try to enter into your cross product. Okay, जरा क्लास लेना अच्छी तरह से. Okay, bye beta.